Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss here the ammeter, which is also known as the ampere meter. ठीक है ना? What is this ammeter? It is actually an instrument which is used to measure electric current in a given electric circuit. ठीक है ना? Ammeter क्या होता है बेटा? Simply an instrument which is used to measure electric current in an electric circuit. But in previous lecture we talked about the galvanometer. And galvanometer is also a device, ठीक है ना, which is used to detect or measure the current in a given circuit. Then why we use this, ठीक है ना, another device, that is ammeter, to measure the current. ठीक है ना? So as we know, galvanometer can be used to measure current, but the problem with the galvanometer is that it can get destroyed because of the large current. ठीक है ना? जब हम galvanometer यूज करेंगे, ठीक है ना, to measure the large current, it will get destroyed. For example, अगर यहाँ पे हम बात करेंगे, ये अगर हमारे पास galvanometer है for which the full scale deflection current, ठीक है ना, is Ig. अगर हम कोई galvanometer यूज करेंगे, ठीक है ना, जिसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट जरूरत होता है? Ig. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे लेंगे दिस फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट फॉर दिस galvanometer इज फॉर एग्जाम्पल 10 माइक्रो एम्पियर. अगर, ठीक है ना, अगर करंट पास होता है थ्रू द galvanometer equal to 10 micro ampere, then this galvanometer it will show full scale deflection. ठीक है ना? अगर इससे ज्यादा करंट पास होता है इस galvanometer के थ्रू, then what will happen to this galvanometer? को फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर दिस करंट 10 माइक्रो एम्पियर ये शो करता है ये galvanometer. अगर इससे करंट ज्यादा होगा, मीन्स फॉर दिस लार्ज करंट द नीडल और दिस पॉइंटर, ठीक है ना, ऑफ दिस galvanometer will get deflected through large angles. The pointer of the galvanometer, it will get deflected through a large angle, and the pointer of the galvanometer in such an attempt, ठीक है ना, will get out of the scale and will get breakdown. ठीक है ना? तो galvanometer destroy हो जाता है, ठीक है ना, because of the large current. Also here in this galvanometer we make use of a coil. ठीक है ना, क्योंकि हम मूविंग कॉयल galvanometer, ठीक है ना, रिसेंटली हमने डिस्कस किया था मूविंग कॉयल galvanometer. तो इस galvanometer में हम कॉयल का इस्तेमाल करते हैं. सो व्हेन a given amount of current passes through that coil, it gets deflected, ठीक है ना, it gets rotated in the given magnetic field. So because of that deflection हम मेजर करते हैं current through the given coil or given galvanometer. So अगर ये करंट अब ज्यादा होगा, अगर ये करंट लार्ज होगा, तो इस कॉयल का क्या होता है? ये कॉयल जो है it will get heated up. When this coil gets extremely heated, ठीक है ना, so the galvanometer gets burned down. तो अब हमने क्या यहाँ पे, ठीक है ना, जाना कि when a large amount of current passes through the galvanometer, it gets destroyed. ठीक है ना? अगर ये galvanometer destroy हो जाता है large current से, then how we can measure the large amount of currents, ठीक है ना, passing through a given circuit. So in order to measure such currents, ठीक है ना, we make use of the ammeter. What is this ammeter? It is actually the modified form of galvanometer. तो हम सिंपली करते क्या है, हम यही galvanometer लेते हैं, इसके पैरेलल हम एक लो रेजिस्टेंस यूज करते हैं, ठीक है ना. इसके पैरेलल में हम शंट रेजिस्टेंस, ठीक है ना, ये शंट रेजिस्टेंस होती क्या है? लो रेजिस्टेंस, ठीक है ना, वो हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल टू दिस galvanometer. इससे होता क्या है, अगर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आई होता है जो हमें मेजर करना है, उसका स्मॉल पोर्शन,
IG, जिसको हम फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कहते हैं फॉर दिस गैल्वेनोमीटर, को रिमेनिंग पार्ट जो है, और वी कैन से मेजर पार्ट ऑफ दिस करंट, इट विल पास थ्रू दिस शंट रेजिस्टेंस, मींस I माइनस IG करंट, इट विल पास थ्रू दिस शंट रेजिस्टेंस। इससे होता क्या है, एक तो हम करंट मेजर करते हैं, और दूसरा ये जो गैल्वेनोमीटर है ये डिस्ट्रॉय होने से बच जाता है। ठीक है ना। असल में होता क्या है इससे, अगर ओनली IG करंट पास होता है थ्रू द गैल्वेनोमीटर, then how it measures the current, ठीक है ना। अगर खाली सिर्फ IG करंट, ठीक है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पास होता है किससे, थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर, जो मेजर पोर्शन कहां से जाता है, थ्रू दी शंट रेजिस्टेंस, ठीक है ना, थ्रू दी शंट रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस, then how it can determine or measure the current through the given circuit, means ये I कैसे हम मेजर करेंगे। एक्चुअली चलो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास चलो लोडेड व्हीकल्स है, ठीक है, लोडेड व्हीकल्स है फॉर एग्जांपल, उनमें से अगर फॉर एग्जांपल एप्पल हमने लोड किए हैं, ठीक है ना, अगर हमें अब ये मेजर करना है द अमाउंट ऑफ एप्पल्स, ठीक है ना, द अमाउंट ऑफ एप्पल्स, ठीक है ना, कैरीड बाय दीज व्हीकल्स, तो उसके लिए हमें क्या करना है, वी नीड टू पास these vehicles, we need to pass these loaded vehicles, ठीक है ना, थ्रू a given check point, जहां से हम इनको क्या चेक करेंगे, कितने, ठीक है ना, कितना लोड है इनमें, कितने एप्पल्स होंगे, ठीक है ना। इससे क्या हो सकता है, when all of these loaded vehicles will pass, ठीक है ना, along this road, इससे होगा क्या, ये जो रोड यहाँ पे है, ठीक है ना, इट विल गेट डिस्ट्रक्टेड, मतलब ये रोड जो यहाँ पे है ये खराब हो जाता है, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अल्टरनेट, ठीक है ना, अल्टरनेटिव उसके लिए है क्या, वी कैन सेंड, ठीक है ना, फ्यू व्हीकल्स, ठीक है ना, थ्रू दिस पाथ, थ्रू दिस चेक पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 10 गाड़ियां हैं, ठीक है ना, आउट ऑफ 10 अगर हम खाली एक ही गाड़ी यहां से बेचते हैं, अगर हम खाली एक ही गाड़ी यहां से बेचते हैं, जब एक गाड़ी यहां से जाएगी थ्रू दिस चेक पॉइंट, ठीक है ना, इट मीन्स दैट टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स, ठीक है ना, पासिंग ऑन दिस रोड, दैट इज 10। सिर्फ एक गाड़ी के यहां से जाने से हमें पता चलता है टोटल कितनी गाड़ियां यहां से चली हैं, 10। सिमिलरली अगर 2 यहां से चली जाती हैं तो ठीक है ना, वी कैन से देन टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स, ठीक है ना, दैट हैव पास्ड थ्रू द रोड, दैट इज, ठीक है ना, 20। अगर यहां से 1 जाती है तो दैट मीन्स 10 व्हीकल्स, ठीक है ना, अगर 2 जाती है मीन्स 20 व्हीकल्स, अगर 3 जाती है मीन्स 30, ठीक है ना। सो हम एक स्मॉल पोर्शन, ठीक है ना, मीन्स वी मेक हियर सम प्रपोर्शन ऑफ दीज व्हीकल्स को एक के जाने से हमें पता चलता है कितनी गाड़ियां यहां से चली है, ठीक है ना, 10। सेम इज द केस हियर। सो ये जो हम IG करंट यहां से भेज रहे हैं थ्रू द गैल्वेनोमीटर, इट मीन्स दैट द टोटल करंट I हैज पास्ड थ्रू द गैल्वेनोमीटर। अगर IG से थोड़ा कम होगा तो गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन नहीं होगा उसमें, तो दैट मीन्स देयर इज अ करंट लेस देन दिस I, ठीक है ना, मीन्स फॉर दिस करंट I, this galvanometer show full scale deflection when IG, ठीक है ना, current pass through it, while IG is small amount of current, ठीक है ना, जिसका यहाँ पे जो मेजर करंट है वो कहां से पास हो जाता है, थ्रू दिस शंट, ठीक है ना। इससे ये गैल्वेनोमीटर भी बच जाता है और करंट मेजर भी होता है ओनली, ठीक है ना। हमें यहाँ पे चूज क्या करना होता है, ये शंट रेजिस्टेंस, जिससे ये प्रॉपर रेशियो हम करंट का यहां से भेजते हैं through this galvanometer for which it shows full scale deflection. For example, अगर यहाँ पे हमने अभी जो डिस्कस किया था when galvanometer was alone, ठीक है ना, उसके लिए 10 माइक्रो एम्पियर के लिए ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता था। अगर
अब हमारे पास इनपुट करंट है 50, ठीक है ना, 50 एम्पियर। अब हमें ये 50 एम्पियर मेजर करना है बाय द सेम गैलोनोमीटर। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एक शंट, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर ये गैलोनोमीटर, ठीक है ना, शो करता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर दिस 1 एम्पियर, फॉर 1 एम्पियर, इट मीन्स दैट IG is equal to 1 एम्पियर। सो रिमेनिंग I माइनस IG दैट इज 49 एम्पियर, वो कहां से जाता है, थ्रू दी शंट रेजिस्टेंस को। इसका मतलब है जब ये 1 एम्पियर करंट पास होता है थ्रू दी गैलोनोमीटर, ठीक है ना, इट विल शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन, इट विल शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन। यहां पे जो मार्किंग है ऑन द स्केल, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, 0, ठीक है ना, 25, 50। So here for this 1 ampere it will show full scale deflection that indicates that how much current has passed through the circuit, 50 ampere, ठीक है ना। that is the case of this ammeter। so ammeter होता क्या है, अब simply it is the conversion of galvanometer into, ठीक है ना, galvanometer into this ammeter, where we have used a small or a low resistance which is known as shunt connected parallel to the galvanometer, ठीक है ना। अब हमें ये जो शंट अगर हमें ढूंढना होगा तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखें यहाँ पे। हाँ, सिंस दिस शंट एंड दिस गैलोनोमीटर दे आर हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर। अब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस गैलोनोमीटर देखेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस शंट देखेंगे, ठीक है ना। फॉर दिस करंट आई, इफ V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इफ V is the potential difference, ठीक है ना, across this galvanometer, then this V will be equal to, in terms of this G is resistance, G is the resistance of the galvanometer, so in terms of G and, ठीक है ना, galvanometer current IG, so V will be equal to IG into this G, where capital G is resistance of the galvanometer. Also the same potential difference, ठीक है ना, will be there between the two ends of this shunt resistance. So here if S is the low resistance which we have connected parallel to the galvanometer, then in terms of this S, the potential difference across it will be equal to, ठीक है ना, चलो ये यहाँ पे देखें, also the potential difference across these two end points, that is equal to S into, that is I into R, or we can say R into this R into I. So here R is equal to S, resistance of this, ठीक है ना, वायर R शंट रेजिस्टेंस, ठीक है ना, S into करंट कितना जाता है यहां से, I minus IG. So since this potential difference across these two, that is galvanometer and shunt, that is same, therefore we can write from these two equations, ठीक है ना, we have IG into G equal to S into I minus IG, और we can write, अगर हमें ये शंट ढूंढना पड़ेगा तो S will be equal to IG into G divided by I minus IG. So that is the shunt resistance, that is the amount of resistance, ठीक है ना, required in order to convert a given galvanometer into ammeter, जिसकी रेंज होगी क्या, ठीक है ना, ऑफ रेंज, जहां पे रेंज ऑफ दिस एमीटर होगी क्या, आप 0 to कितना करंट ये मेजर करता है, I, 0 to I, ठीक है ना। सो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट a galvanometer into ammeter of range 0 to I ampere is S equal to IG into G divided by I minus IG. Now effective resistance of an ammeter, ठीक है ना, effective resistance of ammeter. So here we have a galvanometer connected parallel to a shunt resistance, ठीक है ना। Now effective resistance होगी क्या, so here resistance of this galvanometer, that is G, and a resistance of, and the small resistance which we have connected parallel to it is S. So here in parallel combination of resistances, or in parallel combination of resistors, the effective resistance is given by 1 by R effective is equal to 1 by R1 plus 1 by R2, means the reciprocal sum of reciprocals, ठीक है ना, that is the reciprocal of the effective resistance is equal to the sum of the reciprocals of the individual resistances,
मीन्स हियर 1/R1, R1 क्या है G, सो 1/G प्लस 1 डिवाइड बाय R2 कितनी होगी S, so 1/S, which implies that ये जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस एमीटर वो कितनी होगी, सो यार अगर यहाँ पे हम देखेंगे सो दैट इज G plus S divided by G into S. Now taking reciprocals on both sides we can write R effective is equal to GS divided by G plus S. यहाँ पे ये जो शंट रेजिस्टेंस इट इज वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, ठीक है ना, वेरी लो रेजिस्टेंस हम यहाँ पे यूज करते हैं. सो सिंस S, ठीक है ना, S is very small as compared to G, so we can write G plus S, it is equivalent to G, ठीक है ना, because this S is very small as compared to this G, so therefore we can write R effective it is equal to GS divided by G plus S. इसके बाद हम क्या लिखेंगे, only G, so here G and G will cancel, will get cancelled, so here remains S. So effective resistance of the galvanometer of this ammeter, that is equal to S, which is equal to the shunt resistance, ठीक है ना, that is equal to the shunt resistance. Thus we can say here this S is shunt resistance, very small resistance, ठीक है ना. Thus we can say ammeter, thus we can say ammeter is a low resistance device, is a low resistance device. एमीटर इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस, ठीक है ना. अगर हम आइडियल एमीटर की बात करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर वो कितनी होगी, आइडियल एमीटर अगर हम उसकी बात करेंगे, सो आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी, वो 0 होगी, ठीक है ना, 0. सो आइडियल एमीटर जो है उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, 0, because this ammeter is a low resistance device, so resistance of an ideal ammeter कितनी होगी, 0, ठीक है ना. और एक बात और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, that is this ammeter, ठीक है ना, it is always connected in series in this circuit. अगर हमें करंट मेजर करना होगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये जो एमीटर है इसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, नॉट इन पैरेलल, ठीक है ना. दिस ammeter is always connected in series, ठीक है ना, so as to measure the current through a given circuit, ठीक है ना. चलो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू.